Hello student, welcome to the BioWar. I am your today's biology faculty Pratham Nigam. Let's together we explore the world of the biology. Now today's our topic is your body fluids and circulation. बेटा body fluids and circulation में हम first of all discuss करेंगे blood को. We are already know about that, about the connective tissue. Means the blood is your connective tissue के actual बेटा हम जब blood को देखेंगे तो that is your connective tissue and we are already know about that कि बेटा हम connective tissue को देखते किसी तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है. द फर्स्ट वन इज योर मैट्रिक्स एंड देन सेकेंड वन इज योर सेल. कि बेटा हम जब किसी कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है. वैसे ही हमारा जो ब्लड है इट इज योर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. की ब्लड इज अवर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. कि एक्चुअल हमारा जो ब्लड है इट इज योर कनेक्टिव टिश्यू. मीन्स अगर हम किसी कनेक्टिव टिश्यू को देख रहे हैं तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है. हमको एक चीज और यहाँ पे ये भी क्लियर हो रही है. एक कंपोनेंट तो मैंने बोल दिया बेटा सेल्स होनो और दूसरा कंपोनेंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दैट इज योर मैट्रिक्स. बेटा जो सेल्स है इट इज योर आरबीसी WBC प्लेटिलेट्स है ना. तो सेल्स कौन कौन सी हो सकती है बेटा हमारी RBC WBC एंड प्लेटिलेट्स. बेटा मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स इज योर प्लाज्मा. कि बेटा ब्लड के केस में मैं मैट्रिक्स को क्या बोल रहा हूँ प्लाज्मा. वी आर ऑलरेडी नो अबाउट इट. द ब्लड इज योर स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. कि एक्चुअल हमारा जो ब्लड है वो एक्चुअली क्या है बेटा स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड जो वर्ड जो लगाया मैंने वो इसलिए लगाया है because there will be the presence of the fluid and that fluid is called as the plasma. इसीलिए मैंने क्या बोला blood is your specialized fluid connective tissue as well as blood they will be involved in the transportation. कि बेटा blood जो है वो किस में involve है transportation में involve है. means they can transport the oxygen as well as they can also transport the nutrient. Or you can say they will be involved in the continuous supply of the nutrient and oxygen to the cell. To cell they will be perform the metabolic processes and they can generate the energy because they can be functionally healthy. Means we can require the mobile fluid connective tissue. But a mobile word it can regarded to the transport or you can say the movement. Means यहाँ पे blood क्या कर रहा है मूव कर रहा है जिसके थ्रू सारे सब्सटेंसेस जो है वो भी क्या कर पा रहे बेटा मूव कर पा रहे बॉडी के पार्ट्स के पास न्यूट्रिएंट रिच कर पा रहे. सो दैट्स व्हाई द ब्लड इज योर स्पेशलाइज्ड जो मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. के एक्चुअल हमारा जो ब्लड है वो क्या है एक स्पेशलाइज्ड जो मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड दे विल बी ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म. कि बेटा ब्लड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है मेसोडर्म से हुआ. मीन्स ब्लड इज योर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. The process by which formation of the blood, that process is called as the hemopoiesis. The hemo word it can regarded to the blood and the poiesis word it can regarded to the formation. So the process by which the formation of the blood, that process is called as the hemopoiesis. कि बेटा उस process को मैं क्या बोल देता हूँ hemopoiesis. As well as we are already know about it. The blood they will be consist of the two component. The first component is your blood cell and then second component is your plasma or you can say the fluid or you can say the matrix. And the blood cell they will be also called as the formed element or you can say it is also called as the blood corpuscles. The 55% part of the blood is contributed by the straw colored viscous fluid and that straw colored viscous fluid that is your plasma. कि बेटा वो actual कौन है हमारा plasma. तो the plasma contribute the 55% part of the blood and the remaining 45% part of the blood they will be contributed by the blood cell. जो बेटा जो remaining जो 45% जो part है blood का वो कौन contribute कर रहा है हमारी blood cell contribute कर रही है. As well as we are already know about that the blood cell is your RBC WBC and platelets. And the matrix they will be contain the water, protein and other substances. The water they will be present in the 90 to 92%. The protein they will be present 7 to 8% and the other substances they are only 1%. Means the protein they will be contribute the 7 to 8% part of the plasma and the water they will be contribute the 90 to 92% part of the plasma. जब हमको इतनी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है तो हम जब प्रोटीन्स को देख रहे हैं तो एल्ब्यूमिन्स एंड देन सेकंड वन इज योर
योर ग्लोबुलिन एंड देन थर्ड वन इज योर फिब्रिनोजन। मीन्स जो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन है दैट इज योर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन एंड दे विल बी प्रेजेंट इन द 7 to 8%। बेटा जब हम एल्ब्यूमिन को देखेंगे तो दे विल बी प्रेजेंट इन द 4%। ग्लोबुलिन को हम देखेंगे तो दे विल बी कंट्रीब्यूट द 3% पार्ट ऑफ द प्रोटीन एंड द फिब्रिनोजन दे विल बी ओनली कंट्रीब्यूट द 1%। बेटा यहाँ पे इस 3% को मैं यहाँ पे 2% कर रहा हूँ इटसेल्फ, इसको करेक्टली राइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जो ग्लोबुलिन है इट विल बी कंट्रीब्यूट द 2% पार्ट ऑफ द ब्लड। मीन्स एल्ब्यूमिन इज द मेजर प्रोटीन और यू कैन से द मेजर अमाउंट में जो प्रोटीन जो प्रेजेंटेड दैट इज योर एल्ब्यूमिन। तो द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज योर एल्ब्यूमिन। कि बेटा जो सबसे ज्यादा अबंडेंट जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन हुआ बेटा, हमारा एल्ब्यूमिन। यहीं पे हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज योर हीमेटोक्रिट। कि बेटा किसके बारे में बात करेंगे हम, हीमेटोक्रिट के बारे में, और यू कैन से कि ब्लड सेल पैक्ड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो हीमेटोक्रिट इज योर रेशियो ऑफ द ब्लड सेल टू द ब्लड। कि बेटा ब्लड के रिस्पेक्ट में अगर हम सेल का अगर जो रेशियो लेंगे उस रेशियो को ही बेटा मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, हीमेटोक्रिट बोल दिया। वी आर ऑलरेडी नो अबाउट इट, द ब्लड इज द बेसिक ऑफ लाइफ बिकॉज द ब्लड दे विल बी ब्रिंग ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू ऑल ऑफ द बॉडी पार्ट्स एज वेल एज द ब्लड they can also carry the carbon dioxide and other metabolic wastes or you can the other metabolic material waste material to the lungs, kidney to be removed from the body, जिससे इन सबको हम क्या कर सके, रिमूव कर सके। blood they will be also involved in the fight mechanism because the blood they will be generate the antibodies, so that's why the blood is your basis of the life as well as the blood is the softest tissue in our body। कि बेटा हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टेस्ट जो टिश्यू है that is your blood। तो blood is the softest tissue in the body and the matrix is not secreted by the cells of the blood। बेटा हमने जब मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी, प्लाज्मा के बारे में बात करी थी ब्लड के, तो it will be formed by the water and the protein and the other substances। तो बेटा हमको यहाँ पे जो प्लाज्मा जो प्रोटीन है they do not secreted by the RBC, WBC, platelets or you can say they do not secrete by the blood cell। the matrix of the blood they will be secreted by the or you can say the major amount of the matrix of the blood they will be secreted by the liver। कि बेटा उसको कौन secrete करता, हमारा liver करता। तो the major amount of the or you can say the major protein of the blood it will be secreted by the liver। कि उसको कौन secrete कर रहा बेटा, liver। The matrix is not secreted by the cells of the blood। ये हमको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। बेटा जब तुम कनेक्टिव टिश्यू को देखोगे तो ऑल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दे विल बी कंटेन द फाइबर। कि बेटा वो किसको कंटेन कर रहे होंगे, फाइबर को। बट एक स्पेशल टाइप का वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है और यू कैन से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज योर ब्लड। द ब्लड दे डू नॉट कंटेन द फाइबर, मींस द ब्लड इज द फाइबरलेस। के एक्चुअल बेटा हमारा जो ब्लड है वो क्या है, फाइबरलेस। इन अ ब्लड द फाइबर इज एब्सेंट, सो दैट्स व्हाई द ब्लड इज योर फाइबरलेस। बेटा जब ब्लड की हम पीएच देखेंगे तो इट इज योर 7.4 एज वेल एज हम जब सलाइवा की भी पीएच देखेंगे तो इट विल बी समथिंग 7.4। बेटा ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा एंड दैट इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। कि बेटा जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो आयन है ये ब्लड की पीएच को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। मींस जो कोई भी सॉल्यूशन, जो भी कोई भी सब्सटेंस पीएच को मेंटेन करे उसको मैं बोल देता हूं बफर। और इनसाइड द ब्लड the pH is maintained by the sodium bicarbonate ion, so that's why the sodium bicarbonate ion it will be act as a blood buffer। कि बेटा किसके जैसे एक्ट कर रहा है, ये ब्लड बफर के जैसे एक्ट कर रहा है। as well as the pH in artery are more as compared to the vein। कि बेटा जब हम आर्टरी की pH देखेंगे तो वो मोर रहेगी as compared to the vein because in the vein there will be the presence of the dissolved carbon dioxide as well as there will be the presence of the other metabolic wastes, lactic acid and they will be cause the lower pH। कि बेटा ये pH को क्या कर रहे हैं, डिक्रेज कर रहे हैं। मीन्स वहाँ पे जो pH जो होगी बेटा वो कैसी होगी, एसिडिक होगी। जो वीनस जो ब्लड होता है उसकी pH कैसी होती है बेटा, एसिडिक होती है। उसके पीछे रीजन क्या बताया मैंने, they will be contain the dissolved carbon dioxide as well as lactic acid as well as they will be contain the other metabolic wastes। इन सब चीज़ों की वजह से जो वीनस ब्लड है वो कैसा हो जाता है बेटा, एसिडिक हो जाता है। मतलब जो पीएच होगी वीनस ब्लड की वो क्या होगी बेटा, लोअर होगी एज कंपेयर टू दी आर्टरी ब्लड। बेटा आर्टरी में जो ब्लड है उसकी पीएच क्या होगी, ज़्यादा होगी और वेन में जो ब्लड है उसकी पीएच क्या होगी, कम होगी। वाटर इज हेवियर देन दी ब्लड इज हेवियर देन दी वाटर। कि बेटा ब्लड जो है वो हेवी होता है किससे, वाटर से। और ब्लड की जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है इट विल बी समथिंग
समथिंग 4.7। फिर जब हम एक 70 kg के पर्सन को देखेंगे तो दे विल बी कंटेन दी 5 to 6 लीटर ऑफ द ब्लड, कि बेटा उसमें कितना लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर, अप्रॉक्सिमेटली तो 5.6 लीटर होता है। मतलब 5 से 6 लीटर अगर उसकी बॉडी में ब्लड है तो मतलब 1/13 जो पार्ट है बेटा उसका बॉडी वेट का, दे विल बी फाउंड बाय दी, और यू कैन से द कंट्रीब्यूटेड बाय द ब्लड, कि बेटा वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, हमारा ब्लड। अगर बेटा हम बॉडी फ्लूइड्स को देखें तो बॉडी फ्लूइड्स को मैं मेनली 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करता हूँ, और यू कैन से 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करता हूँ, लाइक दिस, दैट इज योर टिश्यूज के, और यू कैन से द ग्रुप ऑफ द सेल्स, कि बेटा हमको यहाँ पे क्या दिख रही, ग्रुप ऑफ द सेल्स, एंड आउटसाइड द ग्रुप ऑफ द सेल देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसेस, एंड इन दिस स्पेसेस देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ब्लड इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कि एक्चुअल बेटा हमारा जो ब्लड है वो क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हुआ, एंड द 30 to 35% पार्ट ऑफ द ECF, और यू कैन से द 30 to 35% पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दे विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ब्लड, कि बेटा वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारा ब्लड। तो ब्लड दे विल बी फॉर्म्स टू 30 to 35% ECF, और यू कैन से द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कि बेटा जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें जो 30 to 35% जो पार्ट है, दे विल बी फॉर्म बाय द ब्लड, कि एक्चुअल वो कौन फॉर्म कर रहा है, ब्लड। एज वेल एज यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट थिंग हम याद रखेंगे, हो सकता है इस पर से कोई एग्जाम में तुम्हारी कोई क्वेश्चन आस्क हो जाए, या प्रीवियस ईयर में आस्क हुआ होगा, या हो सकता है इन फ्यूचर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आस्क हो सकता है। तो जो भी हम बॉडी के इनसाइड जो स्पेसेस देख रहे हैं या कुछ चैम्बर देख रहे हैं, एंड दोज चैम्बर इट विल बी लाइन बाय द एपिथेलियम सेल, और वो किससे लाइन हो रहे होंगे, एपिथेलियम सेल से, एंड इनसाइड दैट देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द ट्रांससेलुलर फ्लूइड, कि बेटा यहाँ पे हमको क्या दिख रहा होगा, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि दोज फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा cellular fluid, and it is your special type of the extracellular fluid that filled in the spaces of the chamber which is lined by the epithelium cell, that will be called as the transcellular fluid। बेटा उसी को मैंने क्या बोला, transcellular fluid। तो transcellular fluid is your special type of the extracellular fluid, and they will be filled in the spaces, or you can say the chamber which is lined by the epithelium cell। बेटा इसके एग्जांपल में हम लेंगे तो cerebrospinal fluid, or you can say the CSF, they will be present in the ventricles of the brain, or you can say spinal canal। The other example is your intraocular fluid। बेटा eyeball के inside जो fluid जो present है उसको मैं बोल देता हूँ intraocular fluid। The intraocular fluid is your aqueous humor and that is your vitreous humor। दो joints के between भी बेटा जो fluid जो present होता है उसको मैं बोल देता हूँ synovial fluid, and the synovial fluid is also your example of the transcellular fluid। बेटा जब हमको यहाँ पे इतनी बात अगर क्लियर हो रही है तो हमको एक चीज़ और समझना पड़ेगी। मैं वापस से आपको रिकेप करा रहा हूँ कि ब्लड जो है एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज योर ब्लड सेल, एंड द ब्लड सेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉर्म्ड एलिमेंट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड कॉर्पसेस। बेटा ब्लड सेल्स में हम RBC को डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम WBC को डिस्कस करेंगे, एज वेल एज वी कैन डिस्कसिंग अबाउट द प्लेटिलेट्स। तो द प्लेटिलेट्स, RBC एंड WBC दे विल बी फॉर्म द blood cell, and the blood cell they will be contribute the 45% part of the blood। The remaining 55% part of the blood they will be contributed by the plasma, कि बेटा वो कौन contribute कर रही है, प्लाज्मा contribute कर रही है। तो the remaining 55% part of the blood they will be contributed by the plasma। बेटा हम जब प्लाज्मा को देखेंगे तो प्लाज्मा अभी 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ। द फर्स्ट वन इज योर वाटर। तो वाटर दे विल बी कंट्रीब्यूट द 90 to 92% पार्ट ऑफ द प्लाज्मा, एंड देन सेकेंड वन इज योर प्लाज्मा प्रोटीन। द प्लाज्मा प्रोटीन इज नॉट सिक्रीटेड बाय द ब्लड सेल, इट विल बी द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, इट विल बी सिक्रीटेड बाय द लीवर, एंड द प्लाज्मा प्रोटीन दे विल बी प्रेजेंट इन द 7%, और यू कैन से दे विल बी कंट्रीब्यूट द 7% पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। द थर्ड वन इज योर अदर सब्सटेंसेज, दे विल बी प्रेजेंट इन दी 1% इन अमाउंट, कि बेटा ये 1% समथिंग प्रेजेंट होते हैं, और यू कैन से दे ओनली फॉर्म दी 1% पार्ट ऑफ दी प्लाज्मा। बेटा जब प्लाज्मा प्रोटीन को हम देखेंगे तो द फर्स्ट वन इज योर एल्ब्यूमिन, द सेकेंड वन इज योर ग्लोबुलिन, एंड देन थर्ड वन इज योर फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन मैंने बताया था 4% इन अमाउंट में होता है, ग्लोबुलिन जो होता है वो समथिंग 2% होता है, एंड द फिब्रिनोजन दे विल बी प्रेजेंट ओनली 1%। द मेजर अमाउंट में जो बेटा प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है दैट इज योर एल्ब्यूमिन। तो हमको
यहीं पे एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द मेजर और यू कैन से द अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज योर एल्ब्यूमिन, कि बेटा जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो प्लाज्मा प्रोटीन है दैट इज़ योर एल्ब्यूमिन। बेटा जब हम ब्लड प्लाज्मा को देखेंगे तो इट इज़ दी पेल येलोइंग कलर की, ये कैसी दिख रही होगी बेटा हमको, पेल येलोइंग कलर, एंड इट इज़ योर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, और ये कैसा फ्लूइड है बेटा, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। इट इज़ स्लाइटली एल्केलाइन एज वेल एज इट इज़ नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, और ये कैसा है बेटा, नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस है। बेटा प्लाज्मा में हमको पहले ही पता है कि वाटर जो है दे विल बी फॉर्म द 90 to 92% पार्ट ऑफ द ब्लड। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन, कि बेटा हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। एंड द फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन इज योर एल्ब्यूमिन, कि बेटा जो फर्स्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन हुआ, हमारा एल्ब्यूमिन। एंड द एल्ब्यूमिन इज योर मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन बिकॉज दे विल बी प्रेजेंट इन द 4% अमाउंट, कि बेटा कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 4% अमाउंट में। एंड द एल्ब्यूमिन दे विल बी इन्वॉल्व इन द मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, कि बेटा किसको मेंटेन करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, एज वेल एज इट विल बी मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, कि बेटा किसको मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। Sorry, as well as we are already know about that inside the blood vessel there will be the presence of the blood, कि बेटा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ब्लड प्रेजेंट है। एंड इनसाइड द ब्लड देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन, कि बेटा यहाँ पे हमको एक प्रोटीन प्रेजेंट दिख रहा है एंड दैट इज योर एल्ब्यूमिन। और अभी मैंने बात करी थी एल्ब्यूमिन के बारे में कि जो एल्ब्यूमिन है वो किस में इन्वॉल्व है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में इन्वॉल्व है। जब हमको इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो रही है, मीन्स ब्लड वेसल के इनसाइड से वाटर का लॉस नहीं हो, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना, ब्लड वेसल के इनसाइड वाटर को मेंटेन करके रखना, कैप्ट करके रखना, दे विल बी परफॉर्म बाय द एल्ब्यूमिन। वो कौन परफॉर्म कर रहा है, एल्ब्यूमिन, बिकॉज द एल्ब्यूमिन दे विल बी मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किसको मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि ब्लड वेसल से बेटा वाटर क्या नहीं हो रहा है, आउट नहीं हो रहा है, वाटर का लॉस नहीं हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा, उसको प्रिवेंट कौन कर रहा है बेटा, हमारा एल्ब्यूमिन कर रहा है। तो एल्ब्यूमिन प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम द ब्लड वेसल बिकॉज द एल्ब्यूमिन दे विल बी मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, कि बेटा वो किसको मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। इफ इन द केस द प्लाज्मा प्रोटीन लेवल दे विल बी फॉल, कि बेटा प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल क्या हो जाए, फॉल हो जाए, और यू कैन से द एल्ब्यूमिन लेवल दे विल बी डाउन, कि बेटा एल्ब्यूमिन का लेवल क्या हो जाए, डाउन हो जाए, एल्ब्यूमिन लेवल दे विल बी लो। अगर बेटा एल्ब्यूमिन का लेवल लो होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा बेटा, हमारा डिक्रीज होगा, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो ब्लड वेसल के इनसाइड हम वाटर को क्या नहीं कर पाएंगे, कैप्ट नहीं कर पाएंगे। मींस जो वाटर है वो दे विल बी लॉस्ट एंड द फ्लूइड दे विल बी accumulate inside the body cavity and the part of this body they will be occur swollen and that condition is called as the edema, कि बेटा उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, एडिमा बोल देते हैं। तो जब हमको यहाँ पे इतनी चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है अच्छे से, तो हम समझ रहे हैं अच्छे से कि एडिमा इज द accumulation of the fluid in the body cavity or you can say the body tissue, that condition is called the edema। और एडिमा पर्सन को क्यों अकर हो रही है, क्योंकि एल्ब्यूमिन का लेवल क्या हो चुका है बेटा, लो हो चुका है, और यू कैन से द फॉल हो चुका है, और उसकी वजह से जो वाटर है, वो जो फ्लूइड है, वो कैप्ट नहीं हो पा रहा है इनसाइड द ब्लड वेसल एंड दे विल बी लॉस एंड दे विल बी एक्यूमुलेट इनसाइड द बॉडी कैविटी और यू कैन से द टिश्यू स्पेसेस एंड दे विल बी लीड्स टू द स्वॉलन। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि इनके जो फूट है ये कितने ज़्यादा देखो बेटा स्वॉलन हो चुके हैं, और स्वॉलन होने के बाद हम जब वहाँ पे फिंगर को टच कर रहे हैं तो आप देख रहे हो वहाँ पे किस तरीके से एक अपर्चर बन गया है, एक डिप्रेशन बन गया है। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे बेटा। एक चीज़ हमको अच्छे से पता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है दे विल बी सिक्रीटेड बाय द, और यू कैन से द मेजर ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन दे विल बी सिक्रीटेड बाय द लीवर। मीन्स यहाँ पे लीवर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन को सिक्रीट नहीं कर पा रहा होगा, तभी प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल क्या हुआ होगा बेटा, फॉल डाउन हुआ होगा। तो इट विल बी इंडिकेट दी, अगर बेटा हमको एल्ब्यूमिन का लेवल लो दिख रहा है, एडिमा की कंडीशन दिख रही है, तो इट विल बी इंडिकेट दी द प्रॉब्लम दे विल बी अराइज इनसाइड द लीवर और यू कैन से द किडनी। बेटा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही होगी, लीवर या फिर किडनी में हो रही होगी। एंड द सेकेंड प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज योर ग्लोबुलिन, कि बेटा सेकेंड जो हमने यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन देख रहे हैं वो कौन है बेटा, हमारा ग्लोबुलिन। द ग्लोबुलिन दे आर द 3 टाइप के। बेटा ग्लोबुलिन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर अल्फा ग्लोबुलिन एंड देन सेकंड वन इज योर बीटा ग्लोबुलिन एंड देन थर्ड वन इज योर गामा ग्लोबुलिन। बेटा अल्फा और जो बीटा ग्लोबुलिन है दे विल बी परफॉर्म द वर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट, कि बेटा जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क है इनसाइड द ब्लड दे विल बी परफॉर्म बाय द अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन। मींस द अल्फा एंड
एंड बीटा ग्लोबुलिन दे विल बी इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, कि बेटा किसमें इन्वॉल्व है वो ट्रांसपोर्टेशन में। बट हम जब गामा ग्लोबुलिन के बारे में बात करेंगे तो जो गामा ग्लोबुलिन है दे विल बी ऑल्सो कॉल्ड इज द इम्यूनोग्लोबुलिन, कि बेटा गामा ग्लोबुलिन को हम और क्या बोल देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंड दे विल बी जनरेट द एंटीबॉडीज, और ये किसको प्रोड्यूस करते हैं बेटा, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, एंड द एंटीबॉडी दे विल बी किल और यू कैन से डिस्ट्रॉय द पैथोजन। मींस द गामा ग्लोबुलिन दे विल बी प्रोवाइड द इम्यूनिटी, के बेटा किसी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन वर्क फॉर द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आयरन, कॉपर, प्रोटीन, लिपिड, हीमोग्लोबिन रिलीज्ड बाय डेड आरबीसी। याद रखना बेटा हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी के थ्रू होता है। बट अगर हमसे पूछा जा रहा है कि जो बेटा हीमोग्लोबिन जो रिलीज हो रहा है डेड आरबीसी उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, तो हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, एंड ऑल ऑफ अकर थ्रू अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन। तो बेटा इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन जो है दे ऑल ऑफ अकर विद द हेल्प ऑफ द अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, एंड द गामा ग्लोबुलिन इट इज ऑल्सो नॉन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन, कि बेटा इसी को हम और क्या बोल देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, विच एक्ट एज ए और यू कैन से विच कैन फॉर्म द एंटीबॉडीज, और ये किसको फॉर्म करेंगे बेटा, हमारी एंटीबॉडीज को फॉर्म करेंगे। बेटा यहाँ पर हमें एनसीईआरटी की एक लाइन है कि जो ग्लोबुलिन से प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बिकॉज दे विल बी जनरेट द एंटीबॉडीज, और ये किसको जनरेट करते हैं, बिकॉज एंटीबॉडीज को जनरेट करते हैं। द थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज योर फिब्रिनोजन दे विल बी प्रेजेंट इन द only 1%, and the fibrinogen they will be involved in the formation of the clot, so that's why they are responsible for clotting, कि बेटा किसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स लाइक दिस दैट इज यूर ब्लड वेसल्स, कि बेटा ये क्या हमारी ब्लड वेसल्स है, किसी वजह से इस ब्लड वेसल में डैमेज आ गया है। डैमेज आने के बाद बेटा यहाँ पे ब्लड का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, और इस ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करना, इस डैमेज ब्लड वेसल के इनसाइड ब्लड को कैप्ट करके रखना, दे विल बी कॉल्ड एज द हीमोस्टेसिस, कि बेटा उसी को मैं क्या बोल देता हूँ, हीमोस्टेसिस, और यू कैन से द हीमोस्टेसिस। मैंने बेटा होम्योस्टेसिस नहीं बोला, मैंने बोला हीमोस्टेसिस। तो hemostasis or you can say the hemostasis is a process to prevent bleeding, कि बेटा जिस प्रोसेस के थ्रू हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं उसी को बेटा मैंने क्या बोला, hemostasis। और फिब्रिनोजन क्लॉट का फॉर्मेशन कर रहा है जिससे हम ब्लीडिंग को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, सो दैट्स व्हाई द फिब्रिनोजन मेंटेन द hemostasis, कि बेटा किसको मेंटेन कर रहा है, hemostasis को मेंटेन कर रहा है। लाइक दिस दैट इज योर पंचर ब्लड वेसल्स, एंड फ्रॉम दिस पंचर ब्लड वेसल्स द ब्लड दे विल बी लॉस। अब इस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना, इस पंचर ब्लड वेसल के इनसाइड ही ब्लड को कैप्ट करके रखना, एज वेल एज ब्लीडिंग को स्टॉप करना, दे विल बी कॉल्ड एज द हीमोस्टेसिस, और इसी को मैंने क्या बोला, हीमोस्टेसिस। एंड द हीमोस्टेसिस दे विल बी मेंटेन बाय द फिब्रिनोजन बिकॉज द फिब्रिनोजन दे विल बी फॉर्म द क्लॉट, कि बेटा वो यहाँ पे किसको फॉर्म कर देगा, क्लॉट को फॉर्म कर देगा। बट अगर हीमोस्टेसिस का हम अपोजिट देखें तो मतलब ब्लीड होना, एंड दे विल बी कॉल्ड एज द हेमरेज, उसी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, हेमरेज। अब जैसे कि हम पुराने आशिकों को देखते हैं तो वो बड़े ही सलीके से एक ब्लेड को यूज करके ऐसे कट कर लेते हैं, और जब वो हेमरेज होता है तो कभी कभार वो देखते हैं कि अपने आप ब्लड क्या हो जाता है बेटा, रुक जाता है। तो अगर नॉर्मल हेमरेज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट कभी कभी कुछ बड़े से डेप्थ कट हो जाते हैं, एंड दे विल बी रिक्वायर्ड दी सर्जिकल इंटरवेंशन, और उन डेप्थ कट के लिए, उन डेप्थ हेमरेज के लिए बेटा किसकी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, हमको सर्जिकल इंटरवेंशन की भी रिक्वायर्ड हो सकती है। तो लॉट ऑफ ब्लीडिंग इन द बॉडी दे विल बी कॉल्ड एज द हेमरेज, उसी को बेटा मैंने क्या बोला, हेमरेज। और कभी भी गलती से ऐसे गलत कदम नहीं उठाना है। चलो कोई बात नहीं बेटा, इससे भी दिल का रास्ता सीधा होता है तो दाएं बाएं दुनियादारी होती है। चलो फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग, कि बेटा फिब्रिनोजन है वो किसके लिए नीड है, क्लॉटिंग के लिए, और यू कैन से द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। बेटा क्लॉटिंग को ही मैंने क्या बोला, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, और यू कैन से द फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। एंड द ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज द ग्लोबुलिन दे विल बी जनरेट द एंटीबॉडी, और कौन सा ग्लोबुलिन बेटा, गामा ग्लोबुलिन।
globulin. Alpha and beta globulin, they will be involved in the transportation. The globulin, they will be present in the 2% in amount. We are already know about that. And the albumin, they will be present the 4% in amount. And the most abundant plasma protein, that is your albumin. Albumin का लेवल लो होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाएगा बेटा. ऑस्मोटिक प्रेशर लो होएगा तो ब्लड में से फ्लूइड का क्या होने लगेगा बेटा, ब्लड वेसल में से फ्लूइड का क्या होने लगेगा, लॉस, जिसकी वजह से वो जो फ्लूइड है एक्युमुलेट होने लगेगा बॉडी कैविटी में, और उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, इडिमा. एंड दैट कंडीशन दे विल बी इंडिकेट दी प्रॉब्लम, दे विल बी अराइज इनसाइड द लीवर. बेटा अब जब हमको यहाँ पे एक और चीज हमारे सामने टर्मिनोलॉजी आ रही, दैट इज यूर सीरम. तो ब्लड प्लाज्मा विदाउट द फिब्रिनोजन, कि बेटा अगर ब्लड प्लाज्मा से हम किसको निकाल दे, किसको रिमूव कर दे, फिब्रिनोजन को रिमूव कर दे, तो दे विल बी कॉल्ड एज दी सीरम, कि बेटा उसी को हम क्या बोल देते हैं, सीरम. तो ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, दे विल बी कॉल्ड एज दी सीरम. और यू कैन से द ब्लड प्लाज्मा विदाउट द फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर, दे विल बी कॉल्ड एज दी सीरम. उसी को बेटा मैं क्या बोल देता हूँ, सीरम. द सीरम, बेटा ब्लड प्लाज्मा में से मैंने किसको माइनस करा, क्लॉटिंग फैक्टर को. बेटा ब्लड में से नहीं, मैंने ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर बोला, मतलब सीरम डज नॉट कंटेन द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. और यू कैन डायरेक्टली से दैट द ब्लड सीरम डज नॉट कंटेन द ब्लड सेल, कि बेटा किसको कंटेन नहीं कर रहा है, ब्लड सेल को. तो सीरम डज नॉट कंटेन द डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, और यू कैन से द क्लॉटिंग फैक्टर. एंड द सीरम दे आर द पेल येलो इन कलर. और ये कैसा होता है बेटा, हमारा पेल येलो इन कलर. नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट दी डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम. अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, ब्लड प्लाज्मा और सीरम के बिटवीन एक डिफरेंस देखेंगे. तो द ब्लड प्लाज्मा इट इज द फ्लूइड माइनस द ब्लड सेल, कि बेटा फ्लूइड में से अगर हम किसको माइनस कर दे, ब्लड सेल को माइनस कर दे, तो दे विल बी कॉल्ड एज द ब्लड प्लाज्मा. एंड द सीरम इट इज द फ्लूइड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. अगर बेटा प्लाज्मा से हम फ्लूइड को माइनस प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दे, तो दे विल बी कॉल्ड एज द सीरम. एंड इट इज द फेंट येलोइंग कलर. बेटा जो ब्लड प्लाज्मा वो कैसा दिख रहा है बेटा हमको, फेंट येलोइंग कलर. एंड द सीरम इट इज द पेल येलोविश इन कलर. एंड द ब्लड प्लाज्मा इट हैज द फिब्रिनोजन और अदर क्लॉटिंग फैक्टर. बेटा ब्लड प्लाज्मा के पास फिब्रिनोजन प्रेजेंट है, एज वेल एज अनदर क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट है. तो इट टेक्स द पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, कि बेटा ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होगा. बट जब हम सीरम को देखेंगे तो सीरम डज नॉट कंटेन द फिब्रिनोजन और यू कैन से द अदर क्लॉटिंग फैक्टर. सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट टेक पार्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग, कि बेटा क्लॉटिंग में पार्ट टेक नहीं कर पाएगा. जब हमको इतनी चीज क्लियर हो रही है, तो द प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल. मतलब अगर हमसे किसी ने पूछा कि ब्लड में मिनरल्स होते या नहीं होते, तो हम बोलेंगे यस सर होते हैं मिनरल्स. स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल दे विल बी प्रेजेंट, लाइक द सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन. देयर विल बी ऑल्सो प्रेजेंट ऑफ द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. दे आर ऑलवेज द ट्रांसिट इन द बॉडी, और इन सब का ऑलवेज क्या हो रहा होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है. द फैक्टर फॉर कोगुलेशन और यू कैन से द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, बट इन एन इनएक्टिव फॉर्म. कि बेटा जो प्लाज्मा में जो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग के लिए, और यू कैन से जो क्लॉटिंग फैक्टर जो प्रेजेंट है, दे विल बी प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म. और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में. मतलब ब्लड के इनसाइड अभी हमारे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होंगे वो सब किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, हमारे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. एंड दैट इज द रिमार्केबल क्वेश्चन दे विल बी आस्क इन द एग्जामिनेशन, कि बेटा एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को भी आस्क करा हुआ है. लाइक दिस कि वी कैन टेक दी कार्बोहाइड्रेट डाइट, कि बेटा हमने कार्बोहाइड्रेट डाइट को टेक करा और स्टमक के इनसाइड उसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ. वी आर ऑलरेडी नो अबाउट इट. और उसके बाद जब वो जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपलर फॉर्म में, तो ग्लूकोज के फॉर्म में हो जाएगा. एंड द ग्लूकोज दे विल बी एब्जॉर्ब इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टिन, और स्मॉल इंटेस्टिन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज दे विल बी रीचेस द ब्लड, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद कहां पे रीच कर जाएगा बेटा, हमारे ब्लड में रीच कर जाएगा. एंड द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, अब ब्लड के इनसाइड मतलब ब्लड वेसल के इनसाइड ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अब बढ़ने लग जाएगा. एंड दैट एक्सेस ऑफ द ग्लूकोज दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ द हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज यूर इंसुलिन इन द लीवर एंड मसल्स. और फिर ये जो इंसुलिन जो हार्मोन है लीवर और मसल्स में इस ग्लूकोज का कन्वर्जन करा देगा बेटा किसमें, ग्लाइकोजन में, जिससे हम ब्लड के इनसाइड
यूजुअली ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सके 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ द ब्लड, इतना हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर बेटा इस लेवल से ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द हाइपरग्लाइसीमिया एंड दे विल बी लीड्स टू द डायबिटिस मेलाइटस। और वो किसको लीड्स करेगा बेटा, डायबिटिस मेलाइटस को। अगर ग्लूकोज का लेवल इससे कम हो जाए तो दे विल बी कॉल्ड एज द हाइपोग्लाइसीमिया, उसको बेटा मैं क्या बोल दूंगा, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर डायबिटिक पेशेंट है और ग्लूकोज का लेवल 180 mg पर 100 ml ऑफ दी ब्लड अगर बढ़ने लग जाए तो उसके बाद जो ग्लूकोज है इट विल बी स्टार्ट अपेयर इन द यूरिन, और वो किस में अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, यूरिन में। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसूरिया, और यू कैन से दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द ग्लूकोसूरिया, और उस कंडीशन को बेटा मैं क्या बोल दूंगा, ग्लूकोसूरिया। एज वेल एज वी कैन डिस्कसिंग अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, कि हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। और डायरेक्टली बेटा मैंने इस चैप्टर में अभी तुमको एक बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ाया, दैट इज द ब्लड। बेटा हमारी बॉडी के इनसाइड और यू कैन से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखें तो दे विल बी रिक्वायर्ड द एनर्जी, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो फूड का ब्रेक डाउन करता है, एंड द प्रोसेस बाय विच द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड देयर विल बी द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड द लॉट ऑफ एनर्जी, दैट वूल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। उस वूल प्रोसेस को क्या बोल दूंगा बेटा, रेस्पिरेशन। एंड फॉर दिस रेस्पिरेटरी एक्टिविटी द सेल दे विल बी कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट, कि बेटा हमको सेल को किसको कंटिन्यूअसली सप्लाई करना पड़ेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को। और बेटा अगर हमको कंटिन्यूअसली सप्लाई करना है और जब ये प्रोसेस हो रही होगी तो हार्मफुल वेस्टेज भी जनरेट हो रहे होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और इन सबको रिमूव्ड आउट भी करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, इससे हेल्दी क्या हो सके, फंक्शन हो सके। तो मूवमेंट के लिए इन सब्सटेंसेस के लिए देयर विल बी द नीड ऑफ द एफिशिएंट मैकेनिज्म, कि हमको एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की नीड होगी जिससे हम सेल से इन सब्सटेंसेस का मूवमेंट करा सके और फ्रॉम दिस सेल भी हम इन सब्सटेंसेस का मूवमेंट करा सके। एंड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और यू कैन से द एनिमल इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बेटा डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल ने इवॉल्व करी डिफरेंट मेथड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लाइक दिस हम सिंपल ऑर्गेनिज्म को देखें, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स को देखें, तो ये वाटर के थ्रू ही सराउंडिंग से बॉडी कैविटी में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं सब्सटेंसेस का। बट जब हम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो दे विल बी रिक्वायर्ड द स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट दिस सच मटेरियल, एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन, दैट इज योर ब्लड। वो एक्चुअल कौन है बेटा, ब्लड। देयर विल बी द आल्सो प्रेजेंस ऑफ द अनदर बॉडी फ्लूइड, जोस विल बी आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस, एंड दैट इज योर लिम्फ। और वो कौन है बेटा, लिम्फ। तो मतलब एक चीज हमको समझ में आ गई है कि इस चैप्टर में हम बॉडी फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, एंड दैट बॉडी फ्लूइड्स इज योर ब्लड एंड लिम्फ। और हमने स्टार्टअप किसके साथ करा बेटा, ब्लड के साथ करा है। जब हमको यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो रही है, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की सभी लाइन को बेटा आपकी क्लियर भी करा है। यहाँ पे मैं एक बारी और आपको एनसीईआरटी का पैराग्राफ जो है वो रीड आउट करा रहा हूँ, आपको इस बात पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। कुछ जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, अभी मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करूँगा, वो डायरेक्टली लाइन टू लाइन, कट टू कट एनसीईआरटी से आए हैं प्लाज्मा से रिगार्डेड। और बेटा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और जब प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आरबीसी भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये वाला लेक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिमार्केबल टाइम्सली क्वेश्चन को आस्क करा गया है। लाइक दिस कि अब मैं यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के पैराग्राफ को रीड आउट करना शुरू कर रहा हूँ। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अनदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। सही बात है भाई, सभी सेल्स को हम अनदर एसेंशियल सब्सटेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स भी। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस, और हार्मफुल वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एंड हैज़ टू बी रिमूव्ड, और उनको हम रिमूव्ड करते हैं जिससे कंटिन्यूअसली हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू परफॉर्म हो सके। और इन सब चीज़ों के लिए देयरफॉर एसेंशियल टू हैव द एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंसेस to the cell, or you can say the from the cells. And for this different group of animal have evolved different method for this transport. Like this, the simple organism like sponges, coelentrates circulate water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cells to exchange these substances. हमने ये सभी बातों को clear cut explain करा है। More complex organism use special fluid within their body, and the such
fluid is your blood, the most commonly used, as well as the another body fluid, they will be used for the transport of the certain substances, that is your lymph. फिर बेटा हमने ब्लड के बारे में डिस्कस करा था, तो ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट. वी आर ऑलरेडी नो अबाउट इट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द प्लाज्मा. और आज हमने किसको डिस्कस करा बेटा? प्लाज्मा को डिस्कस करा. तो प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड viscous fluid containing, or you can say the constituting, nearly 55% part of the blood. 90 to 92% of the plasma is water. The protein contribute the 6 to 8% of it. The fibrinogen, globulin, albumin are the major protein. ये major protein है. The fibrinogen are needed for clotting, or you can say the coagulation of the blood. The globulin primarily are involved in defense mechanism of the body, and the albumin help in the osmotic balance. Plasma also contain the small amount of the minerals like the sodium ion and etc. Glucose, amino acid, lipids are also present in the plasma, as they are always in the transport the body. Factor for coagulation or clotting of the blood are also present in the plasma in an inactive form. And the plasma without the clotting factor, it will be called as the serum. इसके बारे में भी हमने डिस्कस करा था. अब कुछ क्वेश्चन है NCERT के, उसको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक छोटी सी वीडियो मिलेगी, जिस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसी टॉपिक से रिगार्डेड डिस्कस कर रहे होंगे. एंड देन वी आर डायरेक्टली डिस्कस विद द आरबीसी. फिर हम आरबीसी के साथ डायरेक्टली स्टार्टअप करेंगे. द फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स, के एक्चुअल प्लाज्मा प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है. द फर्स्ट वन, द प्लाज्मा प्रोटीन इट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस थ्रू द क्लॉट फॉर्मेशन बाय द फिब्रिनोजन. है ना, फिब्रिनोजन जो है वो क्लॉट का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे हम ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर सके. एंड द एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन रिटेन द वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा. मैंने आपको बताया था प्लाज्मा के इनसाइड, ब्लड वेसल के इनसाइड प्लाज्मा में जो वाटर को जो रिटेन करने का काम है, दे विल बी परफॉर्म बाय द एल्ब्यूमिन. इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी. बेटा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं. जो गामा जो ग्लोबुलिन है, दे विल बी जनरेट द एंटीबॉडी. प्लाज्मा प्रोटीन ऑल्सो मेंटेन द पीएच, की बेटा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो किसको भी मेंटेन करते हैं, हमारी पीएच को भी मेंटेन करते हैं. एंड द प्लाज्मा प्रोटीन ऑल्सो हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट इन अवर बॉडी. कि बेटा हमारी बॉडी में यूनिफॉर्मली हीट को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम भी कौन करते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन. Next question in our NCERT, that is the why do we consider the blood as a connective tissue, कि blood को हम connective tissue को डिस्कस करते हैं, मतलब consider क्यों करते हैं? We are already know about that. जब हम connective tissue को देखेंगे तो inside the connective tissue there will be the presence of the matrix, और inside the matrix there will be the presence of the blood cell, and the blood cell they will be present in the scattered. और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी बेटा? scattered फॉर्म में. सेम यहाँ पे भी बेटा प्लाज्मा में जो ब्लड सेल्स है वो scattered फॉर्म में क्या दिख रही है? हमको प्रेजेंट दिख रही है. हमने बोला कि ब्लड इज कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिव टिश्यू, एंड द ब्लड इट विल बी आल्सो लिंकिंग द बॉडी टिश्यू के डिफरेंट बॉडी टिश्यू को एक दूसरे से लिंक भी कर रहा है. एज वेल एज द ब्लड दे विल बी इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू ऑल ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. So that's why we will be considered blood as a connective tissue. इसलिए बेटा हमने ब्लड को किसके जैसे कंसिडर करा? कनेक्टिव टिश्यू के जैसे. नाउ अब कुछ NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देख लेते हैं. नेम द ब्लड कंपोनेंट विच इज द विस्कस एंड स्ट्रॉ कलर्ड. अभी हमने बताया था विस्कस और जो स्ट्रॉ कलर्ड जो फ्लूइड है, एज वेल एज इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है, नॉन लिविंग जो फ्लूइड है, दैट इज यूर प्लाज्मा. और वो कौन है बेटा? हमारा प्लाज्मा. स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड. फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन, वी आर ऑलरेडी नो अबाउट दैट. द fibrinogen they will be involved in the clot formation, and the globulin primarily they will be involved in the defense mechanism, and they will be also involved in the transportation. और वो किस में भी involve होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन में भी involve होता है. and the third question, write the feature that distinguish between the plasma and serum. कुछ ऐसे फीचर्स को हमको राइट करना जो प्लाज्मा और सीरम को डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब हमको डिफरेंस लिखना है. एंड डिफरेंस वी आर ऑलरेडी डिस्कस, हमने इसको भी यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस करा है. नेक्स्ट एक छोटा सा लेक्चर होगा जहाँ पे हम PYQ को डिस्कस कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, और कुछ NCERT बेस्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे होंगे. एज वेल एज हमको यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से समझना पड़ेगी कि आप मेरे ऐप पे जाके आप इन नोट्स को भी देख सकते हो. वहाँ पे मैंने नोट्स को अपलोड कर रखा है. जैसे जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर अपलोड करता हूँ तो ऐप में भी लेक्चर को अपलोड करता हूँ, और वहीं पे नोट्स भी अपलोड करता हूँ, और उसी टॉपिक से रिगार्डेड एक प्रॉपर MCQ भी अपलोड करता हूँ, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NCERT बेस्ड क्वेश्चन और काफ़ी अमाउंट में क्वेश्चन
नोटिफिकेशन भी मिल रहे होते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर. प्लीज डाउनलोड दी माई ऐप दैट इज़ योर बायोवॉर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ योर बायोवॉर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.